A very good morning dear aspirants. Byju's Government Exams Prep channel में आपका स्वागत है. Welcome to the lecture on this day in history. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन क्या-क्या खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है. बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ सर नारायण गणेश चंदावरकर. 1855 में सर नारायण गणेश चंदावरकर का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी का होन्नावर नामक एक पोर्ट टाउन में हुआ था. He was an early Indian National Congress politician and a Hindu reformer. Some regard him as the leading Hindu reformer of Western India. उन्होंने 1885 में बॉम्बे में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम में पूरे दिल से खुद को शामिल कर लिया. इनको 1900 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन लाहौर में आयोजित किया गया था, इसका प्रेसिडेंट चुना गया. इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लिया और अगले 12 साल यानी कि until 1913 he devoted his time to the judicial system and various social groups. In particular इन्होंने प्रार्थना समाज के साथ काम किया. प्रार्थना समाज was inspired by the ब्रह्मो समाज and was involved in the modernization of Hindu society. प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी was a movement for religious and social reforms in Bombay. प्रार्थना समाज के फाउंडर्स थे दादोबा पांडुरंग और इनके भाई आत्माराम पांडुरंग. This प्रार्थना समाज became popular after महादेव गोविंद रानडे joined it. चंदावरकर जी ने महादेव गोविंद रानडे के मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज के नेतृत्व को संभाला. Now coming back to नारायण गणेश चंदावरकर. In the year 1914, इन्होंने भारतीय राजनीति में वापसी की. In the year 1918, a disagreement in the Congress came to separate the organization into two camps. तब चंदावरकर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दिनशो वाचा के साथ 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन के प्रमुख बने. He became the head of the All India Moderates Conference in the year 1918. यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि इनको 1910 में न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट में नाइट के उपाधि दी गई थी. The next important event is the birth of a famous Indian lieutenant इंद्रलाल रॉय in the year 1898. इंद्रलाल रॉय का जन्म कैलकाटा में 1898 में हुआ था. He was Indian lieutenant and first Indian fighter aircraft pilot. रॉय भारतीय लड़ाकू विमान के पहले पायलट थे. He served the British Indian Army, that is the Royal Flying Corps, as well as the Royal Air Force. Royal Flying Corps was the air arm of the British Army before and during the First World War. It merged with the Royal Naval Air Service in the year 1918 to form the Royal Air Force. इनके कार्यकाल में इन्होंने 10 हवाई जीत का दावा किया. As a result, he became the first Indian flying ace. Flying ace का मतलब क्या है? The concept of ace emerged in 1915 during World War I. Flying ace is a military aviator credited with shooting down 5 or more enemy aircrafts during aerial combat. अर्थात हवाई युद्ध के दौरान 5 या अधिक दुश्मन विमानों को शूट डाउन जिन्होंने किया है उनको फ्लाइंग एस कहा जाता था. याद रखिएगा कि इंद्रलाल रॉय इज द फर्स्ट इंडियन फ्लाइंग एस एज वेल एज द फर्स्ट इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट. Next important event to have occurred on the 2nd of December is the soft landing of Mars 3 on the planet Mars. Mars 3 was a robotic automatic interplanetary station of the Soviet Mars program. Mars 3 को लॉन्च किया गया था on May 28, 1971. और आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर 1971 में Mars 3 मंगल ग्रह पर उतरा. मार्स 3 एक स्वचालित अंतर्ग्रहीय स्टेशन है. इसको लॉन्च किया गया था मार्स 2 जो इसका ट्विन स्पेसक्राफ्ट है इसके लॉन्च करने के 9 दिन बाद, क्योंकि मार्स 2 लैंडर मंगल ग्रह के सरफेस पर क्रैश कर गया था.
Mars 3 lander became the first spacecraft to attain soft landing on Mars. And this was on December 2nd, 1971. Mars 3 was launched by Proton K rockets and it consisted of a lander and an orbiter. अब सोवियत मार्स प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे. The Mars program was a series of uncrewed spacecraft अर्थात मानव रहित अंतरिक्ष यान जिसको सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था 1960 और 1973 के बीच. इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? The spacecraft were intended to explore Mars. मंगल ग्रह को तलाशने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. अब बात करते हैं एक ऐसी दुर्घटना के बारे में जिसने एक ही रात में पूरी दुनिया को हिलाकर हजारों लोगों को मौत के घोष में ले लिया. हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी. On the night of 2nd December 1984, a gas leak at the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal led to the deaths of about 4,000 people and adversely affected the health of lakhs of people. इस डिजास्टर का जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो आज तक देखा जा सकता है. Union Carbide India Limited was a pesticide plant which manufactured the pesticide carbaryl. Carbaryl was discovered by an American company Union Carbide Corporation जो UCIL का पेरेंट कंपनी था. UCIL कार्बारिल को मैन्युफैक्चर करता था यूजिंग मिथाइल आइसोसाइनेट जो एक अत्यधिक विषाक्त रसायन है. Although there are other methods to produce the end product carbaryl, they cost more. इसीलिए कार्बारिल को मैन्युफैक्चर किया जाता था by the use of this methyl isocyanate जो एक टॉक्सिक केमिकल है. 2 दिसंबर 1984 के आधी रात के आसपास मिथाइल आइसोसाइनेट लीक होने लगा और 3 दिसंबर सुबह तक हजारों लोगों की मौत हो गई थी. भारत सरकार और एक्टिविस्ट यूसीआईएल को सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराते हैं. UCIL is blamed for neglecting proper maintenance and safety procedures. तो इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे? जो इनिशियल इफेक्ट्स थे वो थे कफिंग, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, सफोकेशन, आई इरिटेशन etc. Because of this event, the stillbirth rate went up to 300% and the neonatal mortality rate shot up by 200%. पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ. The Indian government then passed the Bhopal Gas Leak Disaster Act in March 1985. This gave the government the rights to legally represent all the victims of disaster whether in India or elsewhere. The gas leak has significant long-term health effects because of which people who are exposed are suffering till date. जो इस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स हैं वो अभी भी जन्मदोष सहित गंभीर चिकित्सा शर्तों से पीड़ित है. It has heightened the rates of cancer and tuberculosis in the place where the tragedy took place. The fight for justice by the victims of this man-made disaster is still going on till date. Moving on to the next event for the day that made a mark in the pages of history books is in the year 1993 on the 2nd of December, Space Shuttle STS-61 was launched. STS-61 was the first Hubble Space Telescope servicing mission. STS-61 को लॉन्च किया गया था हबल टेलीस्कोप के सर्विसिंग के लिए. The mission was launched from Kennedy Space Center in Florida. अब STS-61 की बात हो रही है तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं. हबल स्पेस टेलीस्कोप is a space telescope that was launched into lower Earth orbit in 1990. This telescope still remains in operation. हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया है. ये नासा के महान ऑब्जर्वेटरीज में से एक है. The Hubble telescope was built by the US Space Agency NASA with contributions from the European Space Agency. The space telescope completed its 30th anniversary in the year 2020. It is expected that this could last until 2030 or 2040. जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था, एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण इस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था. इसको ठीक करने के लिए STS-61 को आज के ही दिन 1993 में लॉन्च किया गया था. अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, which is International Day for Abolition of Slavery.
अर्थात गुलामी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। The International Day for Abolition of Slavery is a yearly event observed on December 2nd. इसको आयोजित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा सिंस द ईयर 1986। ऑल्सो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि थ्रू रेजोल्यूशन 57/195 ऑफ 18th of December 2002, the General Assembly proclaimed the year 2004 as the International Year to commemorate the struggle against slavery and its abolition. अर्थात गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था 2004। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये सेक्शन आपको अपने तैयारी को टेस्ट करने का मौका देगा। अगर आपने ये डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो इन सब के आंसर्स देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आज का पहला प्रश्न है, हु एस्टैब्लिश्ड द प्रार्थना समाज? ऑप्शन ए नारायण गणेश चंदावरकर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे या ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? Which was the first spacecraft to attain soft landing on Mars? Is it option A Mars 2, option B Mars 3, option C मंगलयान या ऑप्शन डी Mars Pathfinder? अब अगला प्रश्न, What is the name of the pesticide that was being manufactured by Union Carbide India Limited in Bhopal? Is it option A Aldrin, option B Nitrofen, option C Carbaryl या option D Chlordane? Question number 4. Who presided over the Lahore session of the Indian National Congress in the year 1900? Option A Dinshaw Edulji Vacha, option B Narayan Ganesh Chandavarkar, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट? इज इट ऑप्शन ए इंद्रलाल रॉय, ऑप्शन बी सरला ठकराल, ऑप्शन सी जीआरडी टाटा या ऑप्शन डी परेश लाल रॉय? With this we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का डिस्कशन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाभदायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।